So let me start the recording and share my screen. Is my screen visible to you all guys? Yes guys. Yeah, screen दिख रहा है सबको? Okay, fine. Thank you. Okay, so हमने कल JavaScript start किया था, right? Okay, so what all we have covered in our yesterday's class, can we just revise it once? Yes, we have seen the basic introduction. Yeah. Then उसके बाद what else we have seen? What are variables? What are data types? Yes. Okay, फिर operators देखे थे. What are different types of operators? Can we just mention it in the chat box? Can you guys able to mention them inside the chat box? कौन से operators देखे थे? Variable, data types, operators and conditional statement. Exactly right. But operators में भी हमने कितने सारे operators देखे थे? Can we just write it down? It was arithmetic operators. Then we have seen relational operators, right? Then we have seen logical operators. क्या होते हैं? Assignment operators, increment, decrement operators, and we have seen the conditional operators. Yes. Okay. And later we have seen the one more concept, that is conditional statement. And conditional statement में हमने देखा था if else conditional statement, right? Yes. So till here सबको समझ गया था अच्छे से? Yes. अभी conditional statement में ना, okay, from today from in our today's class what we'll be learning, conditional statement में हमारे पास और एक होता है, we call it as if else ladder. Okay, else if ladder we can call it. वहां पर हम क्या करते हैं, more than one conditional check करते हैं. Okay, fine, we'll be seeing that. Okay, then later we'll be seeing the loops. What are loops and why we use the loops? Okay, there are three types of loops. बाद में हमारे पास jumps and continuous statement होते हैं. While we using this statement, वो सब भी हम देखेंगे. Fine. Then we'll be seeing the functions. Okay, what are the different types of function? Why we use function? Okay, and later we'll be seeing array. Okay, and in our today's class we'll be doing all this stuff. Okay, so what we can do, we can just open this. यहाँ पर हम note down करते हैं what all we'll be doing in our today's class. Yeah, so let me this. Okay, so first of all हम क्या देखने वाले हैं? That is the this one, if else ladder, right? Then second हम क्या देखने वाले, loops देखने वाले, different types of loops. Okay, then हम देखने वाले jump and continue statement क्या होता है. Okay, where we use them. Okay, then we will be seeing the functions. Okay, and if we have time, okay, then we'll be seeing the array. Okay, but this four thing we'll be seeing in our today's class. Yes. Okay, so should we move ahead now and start with our today's class, guys? Yes. Should we begin our today's class? Yeah, great. Okay, so first of all, what we will be seeing today, we'll be seeing the LCF ladder. Fine, so it would be over here. I can just make one folder out here, and I can say as in JS day 2. And what else we can do, we can just right click over here, open it in the VS Code. Yes, हम क्या करते हैं, what we can do, we can have two files over here. One can be a basic and one will be a JS file. Okay, let me close this. Index.js, right? यहाँ पर हम लिखेंगे boilerplate, and I can have this JS day 2, right? And हम क्या करते हैं, body में लिखते हैं h1, and we can say welcome to JS day 2, right? Now what we can do, we can attach this JavaScript file inside a script src folder dot slash, and I can say index.js. Okay, and I can just console over here. I am attached. Perfect. Let us open this with a live server. Let me close this first. Let us go live and open this with a live server, and let us see, is it working perfectly fine. Yes, so let us open a console, right click on this, inspect. We can have the console here, right? I am attached bin, we have got it over here. Fine. So yeah,
what we will learning, we'll be learning the first concept, which is else if ladder. We can also call it a if else ladder. Okay, what do I mean by this if else ladder over here is that जहां पर अभी हम जब इफ कंडीशन पर ये करते थे तो देयर वी यूज टू जस्ट चेक वन कंडीशन, राइट? ओके, जब हम ऐसा लिखते थे इफ एंड वी यूज टू राइट एनी कंडीशन हो गया, राइट? और वो कंडीशन पर अगर वो ट्रू हुआ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट होने का, राइट? और एल्स अगर वो फॉल्स हुआ तो हम डायरेक्ट वो उसको एल्स में दिखाने के, राइट? बट नाउ यू हैव टू दिस कि आपके पास दो तीन कंडीशन है, वो आपको चेक करना है, राइट? एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल कि आपको दो नंबर है, ओके? वी हैव टू नंबर दैट num1 we can say 20 and we have number num2 which can be 10 over here. Now what you want to do, you want to ये करना है आपको, क्या इसमें से हमें बताना है क्या which number is greater, okay? Which number is the biggest one, okay? You want to identify which is the biggest number, or else आपके पास और एक कंडीशन है द बोथ नंबर कैन बी इक्वल एज वेल, ओके? तो वहां पर हमारे पास अगर हमें सिर्फ बिगर बताना होता, okay, bigger which one is a bigger and which one is a smaller, so during that time what I can do, I can say I can just say if num1 is greater than num2, right? So we can just console dot log, what we can just say this one, okay, which is num1, okay? I can just say num1 is greater, right? Fine. अगर num1 is greater than this or else हम क्या बोलेंगे, this one, ओके? बट यहाँ पर अभी हमें क्या और एक कंडीशन चेक करना है, व्हाट इट इज, दे बोथ कैन बी इक्वल एज वेल, हम दोनों इक्वल भी रह सकते हैं, तो ये बोथ आर इक्वल, ड्यूरिंग दैट टाइम हमें क्या करना है वो भी बताना है कि बोथ आर इक्वल एज वेल, ओके? सो बिफोर दैट लेट अस सी दिस आउटपुट, ओके? uncoded num2 is not defined, okay, it's not nums2, num1, okay, my bad, it's num1 and num2, sorry, my bad. Okay, so we have got the 20 is greater here. How is it been working? यहाँ पर वो चेक हुआ, so here we have, देखो ये तो हमने कल ही देख लिया था, okay, which was if else statement, okay? I can just comment this out, okay? ये तो हमने कल ही चेक कर लिया था, राइट? कि अगर हमें कौन सा एक ही कंडीशन पे हमें ये करना है, हमें प्रेडिक्ट करना है, और वी कैन से इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई व्हिच वन इज द दिस वन कंडीशन, हमें कौन सा भी कंडीशन हो सकता है, इट वोंट बी लाइक ग्रेटर और स्मॉलर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? ओके, सो एक ही कंडीशन चेक करना है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आई कैन यूज डायरेक्टली इफ एल्स कंडीशन, राइट? बट इफ आई वांट, इफ आई हैव कैन से मोर देन वन कंडीशन, राइट? तो ड्यूरिंग दैट टाइम हम क्या करेंगे यहाँ पर, और एक कभी हमें कंडीशन लिखना होगा, तो आई कैन जस्ट से एल्स इफ, ओके? और हाँ, else if I can say if num1 is equals to num2, right? यहाँ पर डबल इक्वल्स टू वाई हैव यूज, आपको मैं बताया था कल ही कि अगर हमें कुछ चेक करना है कि दोनों इक्वल है क्या नहीं, ड्यूरिंग दैट टाइम हम सिंगल डबल इक्वल्स टू यूज करेंगे, राइट? एंड इफ आई यूज सिंगल इक्वल्स टू, तब हमारा एक असाइन होता है कि num1 में num2 का वैल्यू आ जाएगा, राइट? Okay, so I have just said that if num1 and num2 are equals, so during that time what else we can do, we can just say console.log both sorry, both are equal, perfect, okay? So let us say कि अभी 10 and 10 both are equal, right? So यहाँ पर वो चेक करेगा इस num1 greater than num2, no it is not, it is, तो इसमें नहीं जाएगा, राइट? उसके बाद वो सेकंड कंडीशन चेक करेगा, एंड सेकंड कंडीशन कैसा हमें लिखना पड़ता है, एल्स इफ, ओके? यहाँ पर इसके बाद आप और कंडीशन भी चेक कर सकते हो, बट हमें अभी कुछ कंडीशन नहीं है, राइट? फॉर दैट रीजन हम इधर कुछ लिख नहीं रहे, बट अगर आपके पास अभी आपको और कंडीशन चेक करना है, ओके? क्या ऐसा आप करोगे, इफ एल्स इफ, ओके? एंड यहाँ पर आप कंडीशन अपना लिख सकते हो अगर आपको लिखना होगा, ओके? सेम वे आपको लिखना होगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर भी आप अपना कंडीशन चेक कर सकते हो इफ यू हैव मोर देन 2 to 3 कंडीशन। या वी जस्ट हैव 2 कंडीशन, तो हमने पहले इफ में चेक किया, इफ में नहीं गया तो एल्स इफ में जाएगा और वो चेक करेगा। नाउ सेकंड कंडीशन हमने क्या लिखा है कि इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी जस्ट कंसोलिंग बोथ आर इक्वल, एंड यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा। अभी ये भी ट्रू नहीं होगा, मतलब ये भी हमारा सेटिस्फाई नहीं होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम वो डायरेक्टली एल्स में जाएगा और एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट आउट हो जाएगा, समझ रहे हो? सो अभी फर्स्ट वन का कंडीशन इट इज फॉल्स बिकॉज num1 इज नॉट ग्रेटर देन num2, राइट? देन सेकंड इट इज both are equal, so this will be printed, okay? So let's go and see the output here, so it would be both are equal, right? Okay, and third one it is अगर हमारा num2 is greater than this, so I can just say over here, I can just say 20 over here, and let us see the output. So it will be saying 20 is greater.
which is the num2. Yes, so in this way you can use this else if ladder. Okay, so I can say ओके सो ये लेडर क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज हम मल्टीपल कंडीशन चेक कर रहे हैं, समझ रहे हो, हम इफ में चेक कर रहे हैं, फिर बाद में एल्स इफ में चेक कर रहे हैं, राइट, एंड एट द एंड यहाँ पर एल्स इफ आपको मैंने जैसा बताया मतलब एक ही नहीं आ सकता, आप अपना एल्स इफ और बहुत सारे भी लिख सकते हो, समझ रहे हो, सो यू कैन राइट एज मेनी एज else if condition you want. Okay, fine. So and based on that you can just display the output as per your requirement. फाइन, एंड लास्ट में आपको एल्स लिखना होगा, तो फिर अगर कुछ भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो एल्स में जाके वो प्रिंट कर देगा. यस, सो आई होप सो एल्स इफ का समझ में आया हो सबको. यस, हैव एवरीवन गॉट इट हाउ दिस एल्स इफ लेडर वर्क. यस, हाँ, which was basic और ये कल के इसमें बचा था, right? I would have covered in a last lecture only, but I have forgotten it, and आज मैं देखा कि it is been pending. Fine, so for that reason we have covered it today. Okay, now we'll be moving and seeing the loops. Okay, so loops क्या होता है basically? Okay, अभी आपको समझो कि आपको एक पर्टिकुलर कुछ काम दिया और वो आपको बार बार करना ही होता है. जैसा आपको लूप्स के नाम से समझ में आता होगा कि लूप्स क्या होता है, कुछ काम आपको बार बार करना है, राइट. सो ड्यूरिंग दैट टाइम आप क्या यूज करोगे, लूप्स यूज करोगे. ओके, सो हमारे जावास्क्रिप्ट में वी हैव गॉट थ्री टाइप्स ऑफ लूप्स. ओके, फर्स्ट वन इट इज द व्हाइल लूप. ओके, we have the while loop, then we have do while loop. Okay, and the third one we have for loop. और यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज हम ज्यादातर फॉर लूप यूज करते हैं, राइट, बट वी कैन यूज एनी ऑफ देम. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको वाइल लूप यूज करना है, फॉर लूप ही यूज करना है, बट इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस, हमें कौन सा लूप यूज करना है. फाइन, सो लूप्स क्या होता है बेसिकली, अगर आपको कुछ कंडीशन में मतलब आपको एक कुछ कंडीशन दिया जाएगा और आपको बोला रहेगा कि ये काम आपको करते ही जाना है. ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा, और एल्स द पर्सन हु हैव सेड कि मुझे 100 टाइम आई वांट टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड. ओके, बट हाँ, हम क्या करेंगे, इसको कंसोल डॉट लॉग 100 टाइम्स तो नहीं करेंगे, राइट. तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक लूप लगा देंगे और उसको एक इनिशियलाइज कर देंगे एक नंबर से, क्या एक नंबर होगा 1, और वो कितने टाइम लूप चलेगा, जब तक वो 100 टाइम प्रिंट नहीं कर देगा तब तक वो लूप चलता ही रहेगा. फाइन, सो फॉर दैट रीजन विल बी यूजिंग लूप. सो लूप्स आर बेसिकली यूज अगर आपको एक सर्टन चीज है, मतलब सर्टन काम आपको बार बार करना है कंटिन्यूसली. ओके, मतलब आपको कंटिन्यूसली वो काम करते ही जाना है. ओके, सो ड्यूरिंग दैट टाइम विल बी यूजिंग लूप्स. फाइन, सो हम पहला लूप्स देख रहे हैं व्हाइल लूप्स. Okay, and each and every loops में there are three important part. Okay, three important part हर loop में important होते हैं. Okay, so I can say what are the three important part. Okay, so first one is initialization. आपको इनिशियलाइज करना होता है लूप्स कहाँ से स्टार्ट होगा, समझ रहे हो, फिर आपको एक कंडीशन देना पड़ता है वो लूप कहाँ पर खत्म होगा, मतलब वहां पर जाके वो बंद हो जाएगा लूप. एंड थर्ड वन है आपको हर इनिशियलाइज करके बाद आपको इंक्रीमेंट करना होगा या तो उसको डिक्रीमेंट करना होगा, समझ रहे हो. ओके, सो लेट अस सी वन बाय वन व्हाट डू आई मीन बाय दिस इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड लास्ट वन इज वी कैन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इट. ओके, सो इंक्रीमेंट आपको पता ही, इट कैन बी प्लस प्लस और इट कैन बी माइनस माइनस, राइट. ओके, जो आपने ऑपरेटर्स देखा था इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ओके, सो लेट अस सी द फर्स्ट लूप ओवर हियर, दैट इज द व्हाइल लूप. ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव सेड, क्या लेट मी कमेंट डाउन दिस. Okay, now we are looking out to the first one, that is the while loop. Okay, so while loop का आपका सिंटैक्स ऐसा होता है. फाइन, आपको पहला लिखना होता है, इनिशियलाइज करना होता है आपके वेरिएबल को. ओके, फाइन, आपको इनिशियलाइज करना होता है, फिर while लूप के अंदर आपको कंडीशन देना पड़ता है क्या ये while लूप आपका कब तक चलेगा, ये लूप आपका कब तक चलेगा. ओके, ये लूप के अंदर आपका एक पूरा काम होने के बाद आपको जो ये आपका वेरिएबल है उसको आपको इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट करना होता है. ओके, सो आई कैन जस्ट से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. परफेक्ट. ओके, सो ये आपका बेसिक सिंटेक्स होता है, पहले आपको इनिशियलाइज करना होता है, फिर आपको व्हाइल लूप के अंदर आपका कंडीशन लिखना होता है और लास्ट में आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करना होता है. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, अभी आपको समझो, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट करना है फॉर 100 times or we can say for now 10 times. Okay, so what I will be doing over here is that first मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा. मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा. आई कैन से लेट काउंटर इक्वल्स टू 1. ओके, एंड बाद में मैं क्या बोलूंगा, जैसा मैंने आपको बोला व्हाइल लूप आपको लिखना होता है, व्हाइल लूप के अंदर आपको कंडीशन लिखना होता है, तो मेरे को कितने बार चलाना है 10 टाइम्स, राइट. सो आई विल बी सेइंग
if my this till the time my counter is less than or equals to 10, मुझे क्या करना है, मुझे कुछ काम करना है, वो काम मुझे क्या दिया है, मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड. ओके, आई विल से console.log. ओके, आई विल से हेलो वर्ल्ड. परफेक्ट. ओके, एंड उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, इसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. अगर मैंने इसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं करेगा तो ये एक बार लूप कंप्लीट हुआ, राइट. फिर उसके बाद वो वापस चेक करेगा काउंटर का वैल्यू क्या है. तो काउंटर का वैल्यू हम कुछ इधर अपडेट ही नहीं कर रहे, राइट. हम यहाँ पर इसको कुछ अपडेट ही नहीं कर रहे, तो वो हर बार हमारा काउंटर का वैल्यू 1 होगा और वो हमेशा आपका लूप चलता ही जाएगा. ओके, अगर मैं ऐसा करके आपको आउटपुट देखना है तो आप देख सकते हो. विच विल बी ओवर हियर. वर्क नहीं हो रहा, व्हाई इज इट सो. ओके, इट हैज बीन वेंट इनटू एन इनफाइनाइट लूप. उसको हम बंद करते हैं. लेट अस सी, वी हैव वुड हैव गॉट द आउटपुट. व्हाई इज इट बिहेविंग इन दिस वे. Let me comment down this. Let us close this and open this one new one from here again. I guess हाँ, we have got this. आपका सर्वर क्रैश हुआ रहेगा. फॉर डेट कंसर्न यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा. राइट, लेट अस फॉलो द फर्स्ट दिस वन सिंटेक्स. क्या हमने जो सिंटेक्स बोला था वो, राइट, बिकॉज वहां पर सर्वर ये हुआ था, क्रैश हुआ था. फॉर डेट कंसर्न वो लोड ही होते जा रहा था. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या बोला है, आपको एक इनिशियलाइजेशन करना है. तो मैंने इनिशियलाइज कर दिया, काउंटर एक वेरिएबल लिया है, राइट. इट्स नॉट लाइक दैट आपको काउंटर ही लेना. आई कैन इवन राइट आई एज वेल. ओके, बट एक काउंटर कैसा आपको थोड़ा समझने भी आ रहा है कि यहाँ पर हम काउंट काउंट कर रहे कुछ, और हमारा कुछ एक वेरिएबल है जो काउंट कर रहा है, राइट. सो वन है, काउंटर को हमने इनिशियलाइज कर दिया टू 1, राइट. फिर उसके बाद हमने कंडीशन लिखा है कि टिल द टाइम हमें कितने बार प्रिंट करना है, 10 बार प्रिंट करना था, राइट, हेलो वर्ल्ड. तो हमने क्या किया है, फर्स्ट इट विल चेक क्या इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 10. फिर यहाँ पर जाके वो प्रिंट हो जाएगा, राइट. हमने जो काम बोला उसको प्रिंट करने का. उसके बाद मैंने क्या बोला, यहाँ पर आपको जाके क्या करना पड़ता है, आपको उसको अपडेट करना पड़ता है, राइट. इट कैन बी द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो आफ्टर दैट आई विल से काउंटर प्लस प्लस. तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, हम उसको 1 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, राइट. सो फॉर नाउ कैसा वर्क होगा, सी. सॉरी. सो यहाँ से इनिशियलाइजेशन हुआ, फिर यहाँ पर जाके वो चेक करेगा इज 1 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज. तो यहाँ पर जाके हेलो वर्ल्ड फर्स्ट टाइम प्रिंट होगा. उसके बाद हमारा काउंटर हो जाएगा इंक्रीमेंट. समझ रहे हो. तो इंक्रीमेंट हो गया, अभी कितना हुआ, इट विल बी 2. वापस हो जाएगा यहाँ पर और चेक करेगा. ओके, यहाँ पर जाके चेक करेगा इज 2 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज. तो हमारा ये अभी वापस जाके ये प्रिंट हो जाएगा. फिर 3 होगा. फिर 3 होने के बाद वापस यहाँ पर जाके चेक करेगा क्या इज 3 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस इट इज, यस. फिर उसके बाद वो प्रिंट कर देगा. फिर वापस ऐसा होते रहेगा. फिर एक टाइम आ जाएगा आपका काउंटर 10 हो जाएगा. फिर इज 10 लेस देन इक्वल्स टू 10, यस. लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, राइट. तो वापस अंदर जाएगा लूप के अंदर. फिर उसको प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद 11 हो जाएगा. फिर वो वापस यहाँ पर जाके चेक करेगा कि इज 11 लेस देन इक्वल्स टू 10, नहीं. तब वो यहाँ पर बाहर आके आपका जो नीचे का काम होगा वो काम करेगा. तो आई कैन जस्ट से console.log, आई कैन से while loop ended. इसके नीचे आप जो भी उसको काम बोलोगे वो करने चालू हो जाएगा. सो कैसा आपका काम करेगा, ऊपर से आएगा, यहाँ पर वो इनिशियलाइज कर देगा. फिर ये आपका लूप चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा. 10 बार प्रिंट करेगा आपका हेलो वर्ल्ड. फाइन. और उसके बाद फिर वो एक बार वो उसका काउंट, इधर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया. फाइन. वो फॉल्स होने के बाद आपका ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. फाइन. लेट अस गो एंड सी द आउटपुट ओवर हियर. Why we are not getting the output here? Something wrong over here. No. Why? Why is it so? It's been loading out. Just wait, guys. I can just alert it and say it. Is it working perfectly fine now? Why so? Just wait, guys. Huh? I can just revise it to the normal one. I have got this. हाँ, सी. We have got, see here it's been saying कि 10 टाइम. इसमें क्या आपका लूप
कितने बार प्रिंट कर लिया हेलो वर्ल्ड, इट्स बीन प्रिंटेड फॉर द 10 टाइम, राइट? ओके, यू कैन सी, जस्ट सी द काउंटर हियर, राइट? एंड उसके बाद आपका जस्ट 10 टाइम प्रिंट होने के बाद द व्हाइल लूप हैज बीन एंडेड। ओके, सो इन दिस वे आपका फॉर लूप वर्क होता है। एंड सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, के बीच में लोड ही हो रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द आउटपुट इन द कंसोल, राइट? या तो हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके भी अपने इस पर लिख सकते हैं, फाइन, बट फॉर नाउ अभी कंसोल वर्क कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। ओके, लेट अस रिवाइज द वंस अगेन व्हाट डज दिस फॉर व्हाइल लूप, हाउ इज इट वर्किंग? फाइन, सो आई विल जस्ट शॉर्टन दिस एंड डू इट फॉर द 5 टाइम, राइट? सी कैसा वर्क होगा, सी पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है। इसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है आपका लूप्स का, पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है, देन व्हाइल लूप के अंदर आपको उसका कंडीशन लिखना है कि कितना टाइम तक आपका लूप चलना चाहिए, समझ रहे हो? फिर उसके बाद आपको जो भी आपने काम बोला वो करना चाहिए, उसके बाद लास्ट में आपको उसको इधर इंक्रीमेंट करना है या तो डिक्रीमेंट करना है। परफेक्ट, सो वही वे में हमने क्या किया, पहला उसको इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल लेके काउंटर को 1, और फिर यहाँ पर व्हाइल लूप के अंदर मैंने कंडीशन लिख दिया बिकॉज आई वांट टू प्रिंट द हेलो वर्ल्ड फॉर द 5 टाइम। ओके, सो हाउ इट विल बी वर्किंग, फर्स्ट यहाँ पर जाके वो कंडीशन चेक करेगा, इज माई 1 लेस देन इक्वल्स टू 5? अगर ये ट्रू होगा तो ही आपका लूप में आएगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो ये इसको स्किप कर देगा पूरा, राइट? यहाँ पर जाके वो एग्जीक्यूट होगा। अभी यहाँ पर मैं अगर लिख दूं इज माई 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, सो इट इज नॉट, राइट? यहाँ पर हमारा 1 इज इट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5? नॉट, इट इज ऑब्वियसली नॉट, राइट? सो यहाँ पर वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं और डायरेक्टली अपना ये प्रिंट होगा। लेट्स गो एंड सी द आउटपुट, सी कुछ प्रिंट हुआ? नो, डायरेक्टली हमें आउटपुट आ गया व्हाइल लूप एंडेड। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं जो आपका कंडीशन है अगर वो ट्रू होगा उसके बाद ही वो यहाँ पर अंदर जाएगा और जो भी आपने काम बोला होगा उसको वर्क असाइन किया होगा वो करके डायरेक्टली आपका इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होके वो लूप चलता ही रहेगा। ओके, एंड वंस दिस लूप गेट फॉल्स, ओके, जहाँ पर आपका कंडीशन फॉल्स हो गया, सो उसके लूप के आपके बाहर आ जाएगा एंड लेटर आपने जो भी काम बोला होगा वो यहाँ पर करना चालू कर देगा वन सेकेंड। ओके, सो हमने क्या किया, 5 बार हमारे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया है। फाइन, देन लेटर व्हाट वी हैव डन, we have just increment or decremented, we have just updated this, okay, variable, and later हमने क्या किया उसको वापस हमने as soon as the loop get ended हमने एक काम किया, हमने क्या कर दिया, हमने वापस कंसोल में कर दिया कि हमारा लूप एंड हो गया, राइट? तो लेट्स गो एंड सी हमारा 5 टाइम प्रिंट हुआ है कि नहीं। हाँ, इज माई काउंटर लेस देन और इक्वल्स टू 5, राइट? So we have got the hello world for the 5 time, and later after printing it for the 5 time हमें क्या मिल रहा है, while loop has been ended। Okay, so have everyone got the first loop over here? सबको समझा what's the syntax for this while loop and how is it working? Yes, yeah, fine. Okay, let us move ahead and see the second loop which is do while loop. The while loop and do while loop as per the name आप समझ सकते हो, both are one and the same, right? Okay, यहाँ पर syntax change होता है और while loop और do while loop में एक difference है, I will just make you understand now. Okay, so what it is now, let us say, okay, पहले आप do while का एक समझ लो क्या कैसा क्या वर्क होता है, बेसिक सिंटेक्स। सो आई विल से इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ओवर हियर एज वेल, राइट? फिर बाद में आपको डू में कंडीशन नहीं होता, यहाँ पर कहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो, यहाँ पर, तो उसके लिए आपका बेसिक होता है इन दिस वे, समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप अभी अपना कंडीशन लिखते हो, फाइन। सो यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो तो उसके लिए आप डू वाइल लूप, इसका मतलब आप वाइल लूप को डायरेक्ट उल्टा कर रहे हो। ओके, आप क्या कर रहे हो, पहला सी द सिंटेक्स इज इन दिस वे, पहले आपको इनिशियलाइजेशन करना है तो इसका आपका बेसिक सिंटेक्स है, आफ्टर इनिशियलाइजेशन आपको ऐसा लिखना होता है डू वाइल लूप के अंदर। और डू में कैसा होता है, यहाँ पर आपको जो भी आपको काम असाइन हुआ है वो करना होता है। ओके, एंड द बेसिक डिफरेंस इज जब आपका फर्स्ट टाइम लूप एग्जीक्यूट होता है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम वो आपका कंडीशन चेक नहीं करता है। आपका जब वाइल लूप या मतलब डू वाइल लूप जब सेकेंड टाइम वर्क करता है ना, वहां पर वो कंडीशन चेक करता है। ओके, एंड यहाँ पर दिस इज अ बॉडी, राइट? ओके, जहाँ पर आपका जो भी काम असाइन किया आप वो करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपका कंडीशन हर बार चेक करता रहेगा। सो वाइल लूप का वाइसे वर्सा, मतलब उसको आपको पूरा उल्टा कर दिया है। ओके, सो हमने वाइल लूप, अपना वाइल लूप ऐसा था, राइट? इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंडिंग इट ओवर हियर, बट डू वाइल लूप में हमारा कंडीशन हम हमारे एंड में चेक करते हैं। ओके, फॉर दैट कंसर्न हमारा जो भी डू वाइल लूप है फर्स्ट टाइम आपका कंडीशन वो कभी चेक नहीं करता, बट वो सेकेंड टाइम जब लूप आपका रन होगा वो तब कंडीशन चेक करते हैं। ओके, वो आपको देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं करता हूँ, एक नंबर लेते हैं, दैट नम 1 इक्वल्स टू 20। ओके, एंड मैं बोलूंगा डू व्हाट आई वांट टू डू, आई विल जस्ट प्रेस द कंसोल डॉट लॉग, आई
am working. Perfect. Now हम while loop में as I've said हम condition लिखते हैं. हम क्या लिखेंगे? Is num1 less than 10? Is num1 less than 10? Is 20 less than 10? No it is. Okay, but हमारा क्या होना चाहिए? लूप चलना ही नहीं चाहिए. But what I have said कि हमारा जो do while loop है, okay, वो कितने बार चलता है? आपका एटलीस्ट वन टाइम चलेगा. ओके, वो पहला टाइम जब चलता है ना, तब आपका कंडीशन चेक नहीं होता. ओके, तो पहला मैंने इनिशियलाइज, पहला हम सिंटैक्स समझ लेते हैं. इनिशियलाइजेशन किया. ओके, फिर उसके अंदर जैसा हम वाइल लूप के अंदर कंडीशन अपना कंडीशन लिखते थे, तो यहाँ पर लिख दिया आपने. और उसके बाद जो भी आपका एग्जीक्यूट होता, मतलब आपका जो भी आपने उसको वर्क दिया रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा. राइट, मतलब एग्जीक्यूट मतलब वो काम करेगा. ओके, सो वो हमने यहाँ पर काम कर रहे हैं. ओके, सो वहां पर आप क्या करोगे? डू लिख के यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जो भी काम होगा वो आपको असाइन करना होता है. समझ रहे हो? तो आई हैव जस्ट सेड कि console.log आई एम वर्किंग. हियर यू कैन सी हमारा जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट देन टू हमारा फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब हमारा ये प्रिंट होगा. Okay, let us see is it been printing this. Okay, and let me comment this and I can say do while loop ended. Okay, so हमारा I have said क्या 20 is I have first initialized the number 1 to 20, right, and later what we have seen क्या is 20 less than 10? No it is, but then to हमारा ये print होगा. Reason behind this is for the first time आपका loop कभी change check नहीं होता. क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूशन वाइल पर नहीं जाता, ये यहाँ से वो यहाँ 40th लाइन पे जाएगा, 41 42, फिर सेकेंड टाइम पर वो चेक करेगा कि आपका नम जो आपने कुछ भी कंडीशन दिया है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि. अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वापस वो कंडीशन यहाँ पर ये चालू होगा. ओके, एंड जब तक ये इसको अनसेटिस्फाइड नहीं होगा, मतलब वंस मतलब यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया. राइट, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू क्या भले ही ये कंडीशन फॉर द फर्स्ट टाइम भी गलत है, बट इट विल प्रिंट फॉर द एटलीस्ट फॉर द वन टाइम. ओके, लेट्स गो एंड सी क्या आउटपुट क्या होगा. सो इट वुड बी आई एम वर्किंग. सी आई एम वर्किंग ओवर हियर, right, and num1 is not defined. Okay, it's sorry, my bad, that's num1. So see I am working. उसके बाद फर्स्ट टाइम प्रिंट हुआ इवन दो हमारा एक कंडीशन फॉल्स था. राइट, इवन दो हमारा जो भी एक कंडीशन था फॉल्स था, देन टू इट हैव एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस. ओके, सो आपका जो भी डू वाइल लूप होता है इट विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट फॉर द वन टाइम irrespective of the condition you have used in an while loop. मतलब ये while condition मतलब जो भी आपका while statement है. राइट, यहाँ पर जो जो भी आपने कंडीशन लिखा है irrespective of that your this do while loop will be working at least for the one time. Okay, so for that concern हमारा क्या हुआ है, even though our number is not this मतलब not less than 10, 10 to हमारा ये वाला कंडीशन है it has been printed for the one time. Okay, and once it been printed फिर वहां पर जाके वो चेक किया है क्या इज माई नंबर इज लेस देन 10, मतलब 20 लेस देन 10 है क्या, नहीं है. तो यहाँ पर वो डायरेक्टली यहाँ से वो बंद कर दिया अपना एग्जीक्यूशन और इट हैज बीन दिस मतलब रेंडर्ड इट ऑन द न्यू लाइन. ओके, सो वो नेक्स्ट लाइन पर जाके जो भी आपने काम बोला है वो कर रहा है. ओके, नाउ लेट अस से क्या हमारा है 1. ओके, सो इट्स अ नॉर्मल वन. अभी हम normally check करें and what I want to print my this console.log I am working for the 10 time. Okay, and after that I want to increment this. I can say num1 plus plus. right, हमने इंक्रीमेंट कर दिया जैसा हमारा ये था. राइट, तो इनिशियलाइजेशन कंडीशन और यहाँ पर आपको करना होता है इधर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. समझ रहे हो? इधर यू कैन इंक्रीमेंट इट और यू कैन डिक्रीमेंट इट. परफेक्ट. सो यहाँ पर हमने क्या किया, नम1 में जाएगा एटलीस्ट फर्स्ट टाइम वो कुछ कंडीशन नहीं चेक करेगा, प्रिंट हो जाएगा. इसके बाद हमारा नम1 ये हो जाएगा व्हाट इट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1. राइट, सो नम1 अभी क्या हो जाएगा 2. राइट, एंड आफ्टर दैट हमारा वाइल लूप में जाके कंडीशन चेक होगा. सॉरी, नॉट इन वाइल लूप, वाइल स्टेटमेंट में जाके वो कंडीशन चेक करेगा इज माई 2 लेस देन इक्वल्स टू 10. यस इट इज. तो वापस वो यहाँ से वापस स्टार्ट कर देगा अपना एग्जीक्यूशन. टिल द टाइम हमारा यहाँ का कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता. right, till the time it will go again and start execution. right, and once ये वाला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया तो वो लूप के बाहर आ जाएगा और ये वाला आपका लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा. right, so now I am working will be printed for the 10th time. right, and after that your this do while loop ended will be printed. okay, let's go and see the output now. so here is my num1 less than equals to 10. yes it is. हमारा देखो infinite loop में गया. right, why is it so? we are getting some this is my num1 declared above, that's num1 is equals to 1. right,
देन हमने क्या किया, num1 को यहाँ पर इंक्रीमेंट भी किया है. Later we have checked is my num1 less than equals to 10. Fine. हमारा गया है इनफाइनाइट लूप पर. व्हाई इज इट सो? सी यहाँ पर ये चलते ही जा रहा है. इट्स बिन प्रिंटिंग आउट. Okay, this is condition is my num1 less than equals to 10. Mm-hmm. Yeah, it's been working perfectly fine. Num1, everything has been this commented out above. Let us check it. Why is it not okay? Num1 तो has been perfect. Let's change a variable to I and set. इसको भी हम I कर दें, right? And I can just say till the time my I is less than equals to 20, this 10 I want to print it, right? Still has been doing the same. Okay, let us refresh up. It's been went to the infinite loop. Shit, just wait. हमारा सर्वर को स्टॉप करता है. Let us go live again and let us see how is it working perfectly now. Let us close this tab directly. Okay, I'll just hello. Can you guys able to hear me, guys? My whole system has been crashed. Just wait, guys. Why is it happening in today's class? Okay. Wow. Great, great, great. What else we can do now? Let me stop the recording.